So in the last lecture, we have uh, started the well foundation. See, well foundation, what are the points which we have discussed in the well foundation? The first points, what are the components of the well foundation? Components means what are the parts? For example, cutting edge, curb, steening, well cap, bottom plug, all the things we have discussed and we have defined also, because definitions are important for your exam point of view. Then we have also talked about what are the various shapes and size of the well foundation. Actually, shapes we can say here. So the well foundations, the shape of the well foundation may be circular, may be rectangular, may be a square, maybe twin circular, maybe twin rectangular, maybe twin square, hexagonals, octagonals, like that. And next topic also we have discussed that depth of well foundation. See, whenever we talk about depth of well foundation, two things we have discussed under that heading. The first one is the how we can decide the grip length and the score depth, scoring depth and grip length. And the next point, how we can calculate, how we can find out the bearing capacity of the well foundations below the base of the well foundation. How we can calculate the allowable load, how we can calculate the settlements. That points also we have discussed. And we have also talked about what are the various forces which we normally consider in the design of well foundation. For example, live load, dead load, wind load, water pressure. So all the things we have discussed in the last lecture. So today we are going to cover these two topics. Both the topics are very, very important for the exam point of view. And the first topic is the construction of well foundation. How we can construct the well in the river. Construction of well foundation is also called as sinking of well foundation. Sinking. Sinking is also in many books, a sinking word is written there. So either we can say construction of well foundation or sinking of well foundation. And second points we shall also talk today, that whenever we are going for the construction, normally what happens, there is a chance of tilting and shifting. That point also we shall discuss what do you mean by tilting and shifting of the well foundation. So these two topics we shall talk today. So let us see these diagrams. Just for your convenience, I have given some these diagrams for your understanding point of view. See, what we have discussed earlier, once again, I would like to brief it. See, Kyasan is also called as well. This you have to also keep in your mind. Well foundation or Kyasan. In some books, they have written Kyasan foundation, Kyasan or well foundation, like that also they have written. So you see these circular wells, this is the plan, this is the elevations. And so you see this is this soil. We can also say here, this is the grip length. We can, because below the base of the river bed, this part we can say as a grip length. And this is the water level in the river. And you see this second figure. This is the twins rectangular wells we can also say. So these figures I have shown you just for your knowledge, so that we can remind the previous topic what we have studied. Here so you can see that the twin rectangular wells. The next figure also we can see for your convenience. I would like to explain once again. This we can consider a double D wells. You see the plan is just like a double D. So you can also see here, this is the river bed. So below the river beds, we have constructed the well below the river bed. So top plug, RCC wall, or is this sand filling is also there, bottom plug, curb, and the cutting edge. So the cutting edge is the bottom part of the well foundation. See, above that, we are going to construct the pier, PIER pier, and above that, the bridges, girders will be there. Bridge or railway bridges you can construct. So here also you can see that we can also fill the sand inside the pier. Inside the pier wall, we can also fill the sand. So this is the well which you have to install, which you have to construct in the river, right? So this figure I've given just for your information. So now we shall see, we are going to come to the main points. So construction of well foundation, how we have to construct.
So see, I think already you have studied the surveying. You have also studied about the leveling. So alignment also you have studied. So we see that what are the various points which we normally consider in the construction of well foundation. So wherever we are going for the construction of well, two things are very, very important. The self weight of the well, that is the weight of the staining, self weight of the well, and the dredging of the soil. That means the normally what happens? The well sinks inside the below the river bed by its own weight, by its own weight. So that is called a self weight. And inside the well, we have to go for the dredging. Dredging the soil means digging the soil. We have to excavate the soil surrounding the bottom of the well. So if you are going to excavate the soil will the well will start sinking. So that benefit is there. So these 2 points are there in the construction. Self weight is also going to work there, and dredging of the soil is also going to be carried out. So now we shall see what are the steps which normally we follow for the construction of well foundation. कौन steps हम लोग follow करते हैं? So first, laying the cutting edge. As you know that the bottom part of the well foundation is the cutting edge. तो पहले cutting edge हम लोग को कैसे बनाना है? We have to discuss about this point. Then next point is the alignment control. Alignment control means what? Alignment control, I think already you have studied in the surveying. That alignment means, suppose we are going to construct the well foundation in the river. So I have already told you that at the time of construction, we have to see many points. We have to go for the survey of the river first. We have to survey the river का survey करते हैं. उसके बाद what we normally used to see, वो देखते हैं कि river का catchment कहाँ कम है, ताकि हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्शन में पैसा कम लगे, खर्च कम लगेगा. दूसरा क्या देखते हैं? नेक्स्ट पॉइंट वी सी दैट व्हाट इज द डेप्थ ऑफ रिवर बेड, पानी की गहराई जहाँ कम हो तहाँ वेल बनाने में सुविधा भी होगा, खर्च भी कम लगेगा. और अलाइनमेंट मीन्स फ्रॉम दिस फ्रॉम वन साइड ऑफ द रिवर टू द अदर साइड ऑफ द रिवर्स. दैट मीन्स व्हाट? द अलाइनमेंट मीन्स जो अगर हमको वेल फाउंडेशन बनाना है तो वेल का कंस्ट्रक्शन कहाँ किस लोकेशन पर करना है इन द रिवर में कहाँ बनाना है. और चूंकि आपका जो वेल जब पहले वेल कंस्ट्रक्शन जब कर लेंगे तो वेल के ऊपर आपको पियर बनाते हैं, पाया बनाते हैं. तो एक चीज हम लोग ध्यान रखते हैं, अलाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पियर should coincide the center of gravity of the well foundation. If it is not going to coincide, then eccentricity problem will arise and the bridges may collapse. So that is called as alignment of the alignment. This is called as alignment. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Okay. So the third point is, one by one we shall also explain. Construction of well curve. See, first we shall go for the cutting edge, which is the bottom part of the well. Then we shall also think about the alignment control. एक किनारे से दूसरे किनारे तक का जो ब्रिज बनानी है या जो वेल बनाना है हम लोग को, वो अलाइनमेंट उसका सही होना चाहिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल कर्व, कटिंग एज के ऊपर वेल कर्व बनाते हैं. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल स्टीनिंग, उसके ऊपर दीवार खड़ा करते हैं. वेल स्टीनिंग नथिंग बट दी वॉल्स ऑफ दी वेल. एंड the next step which we are going to follow here, which is called as well sinking. कंस्ट्रक्शन करते चलते जाते हैं हम लोग और उसकी वजन से ही अपने आप नीचे आपका जो है वेल सिंक होते चला जाता है. सिंक मतलब सेटल. इट गो इन below the river bed. It enters below the river beds, we can say. So now we shall see the first point. We shall see laying the cutting edge. कटिंग एज हम लोग कैसे बनाते हैं? पहले कटिंग एज द बॉटम पार्ट ऑफ द वेल फाउंडेशन. सो वी शैल डिस्कस वन बाय वन. हियर 3 पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. फर्स्ट है, सपोज रिवर बेड इज ड्राई. यदि रिवर बेड्स बिल्कुल सूखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं? द कटिंग एज इज प्लेस्ड इन पोजिशन आफ्टर रिमूविंग द टॉप्स लूज लेयर ऑफ सैंड
about 15 centimeter. That means what? As you know, in the river, sand is there. In the river bed, only sand is there. So we shall excavate the 15 centimeter. We shall remove the 15 centimeter sand, and then we shall put the cutting edge. See, cutting edge may be made up of the steel. You can see this figure. This is the cutting edge, right? Here also, this is the cutting edge. And this about this figure also, I will tell you what we have to do. So this, if river bed is dry, then we have to go for the directly cutting edge. हम वहाँ रखते हैं, which may be made up of the steel. It in the form of a ring also. And the next, what we have to do, suppose when the depth of water in the river is up to 5 meters, a temporary structure known as sand island is made before placing the cutting edge and the curve. कटिंग एज के ऊपर कर्व होता है, तो हम क्या करते हैं, व्हाट इट सेज दैट यदि इफ डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज अप टू 5 मीटर, उसके लिए सब वी शैल सी दिस फिगर. यदि मान लीजिए 5 मीटर तक अगर पानी की गहराई है रिवर में, तो हम लोग एक वहाँ सैंड भर देते हैं, सैंड का आइलैंड बना देते हैं, टापू बना देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कटिंग एज, हम लोग पहले कटिंग एज बनाते हैं, उसके ऊपर कर्व बनाते हैं, कर्व के ऊपर स्टेनिंग वाला खड़ा करते हैं. बट what we have to do here, one important points we have to think, we have to keep in our mind, that whenever you are going to construct the well above the sand island, we have to have sufficient space surrounding this well. That means जैसे हमने वेल ये इसका जो विड्थ ज़्यादा रखते हैं, ताकि हम लोग लेबरर्स जो है इधर खड़ा होकर के काम कर सके. यानी आइलैंड थोड़ा बड़ा होना चाहिए वेल जो हम लोग बनाते हैं उसके कंपेरिजन्स में. That's why it is written there, the size of island should be large enough to accommodate the well with adequate working space all round. Actually, working space is also required. So that points also we have to keep in our mind. So next point, suppose the water depth is more than 5 meter. The 3 points we have seen. River bed यदि सूखा हुआ है, अगर 5 मीटर तक पानी है, तो हम लोग आइलैंड बना दिया. अगर मान लीजिए कि 5 मीटर से ज़्यादा पानी है रिवर में, तो उसके लिए हम लोग कटिंग एज कैसे क्या करेंगे. तो कटिंग एज उस स्थिति में हम लोग जनरली शोर, यू कैन सी नियर द रिवर बैंक, शोर इज नथिंग बट इट इज द रिवर बैंक. सो रिवर बैंक के किनारे ही हम लोग कटिंग एज पहले बना लेंगे. लकड़ी देखिए, इसके नीचे हम लोग स्लीपर रखते हैं. स्लीपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुडन प्लैंक्स. यू कैन सी हियर, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इज मोर देन 5 मीटर, द कटिंग एज एंड द वेल कर्व आर फैब्रिकेटेड ऑन द शोर. Shore means river bank. It is fabricated at the bank of the river and dragged to the sand island for installation. यदि पानी, मतलब यहाँ पर भी हम लोग सैंड भर दिए हैं, लेकिन कभी कभी पानी ज़्यादा है, तो उस स्थिति में हमको क्या करेंगे कि हम लोग यहीं पर पहले कटिंग एज बना लेंगे, इसके ऊपर हम लोग वेल कर्व खड़ा करेंगे. वेल कर्व जनरली जो बनता है वो आरसीसी का बनता है, तो वेल कर्व इसके ऊपर जैसे बनाएंगे. दिस इज ओनली अबाउट द कटिंग एज. और इसके बाद हम लोग ला करके उसको सीप से ले करके तब यहाँ पर आइलैंड पर रखेंगे इसको. सो दिस इज अबाउट द लेइंग द कटिंग एज. यस, टेल मी. सर बीच में आवाज चली गई थी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा सर. अच्छा, आवाज चली गई थी. यस सर, यस सर. यस. सो विच पॉइंट वी हैव टू रिपीट नाउ, फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम हियर, फ्रॉम लेइंग द कटिंग एज? The depth of water. Depth of water, yes. So depth of water, the second point, na? This up to the 5 meter. जी सर, जी सर, जी सर. So the cursor is also visible. Cursor. Yes sir, it's visible. Okay. So see, 3 conditions are there. How? See, the first point is laying the cutting edge. How we have to lay the cutting edge for the construction of well foundation. So three points are there. We have to keep in our mind. First is when river bed is dry, then directly we shall excavate the sand up to 15 centimeter depth, and we shall start installing this cutting edge at that point. Suppose river depth is up to 5 meter. In that case also what we shall do, we shall make a sand island. एक sand island बना देते हैं और उसके इतना चौड़ा बनाते हैं कि ताकि हमको वर्कर भी यहाँ काम आराम से चारों तरफ काम कर सके. और इसके बाद यहाँ पर हम लोग कटिंग एज यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं. Suppose the water level in the river is more than 5 meter. In that case also we have to prepare the sand island. चारों वहाँ सैंड ला करके भर देते हैं वहाँ पर.
बट व्हाट वन थिंग वी यूज टू डू, कटिंग एज हम लोग रिवर के किनारे बना लेते हैं और उसका वेल कर्व भी उस पर खड़ा कर लेते हैं, दोनों साथ में फैब्रिकेट करके, और तब खींच करके किनारे से लाकर शिप से उठा करके या क्रेन से उठा करके हम इस पर आइलैंड पर रख देते हैं. So these 3 points are there. When river bed is dry, then when water table is up to 5 meter, when it is not water table, depth of water is more than 5 meter. In that case, what we have to do? So this is about the laying of the water, laying of the cutting edge. The next point is, am I audible now? Yes, sir. Audible, sir. Okay. So next point is the alignment control. So here we have to keep in our mind, we have already studied the surveying, that how we can align in the river. Alignment also we have studied in the surveying. So what we, in the case of alignment, what we have to do, from this bank to that bank, from one side to the other side of the rivers, we have to make alignment. That सेंटर लाइन का अलाइनमेंट हम लोग करते हैं कि जो वेल कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल करना है, पॉइंट मार्क करते हैं हम लोग. एक रोप भी हम लोग दे सकते हैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, मैसनरी वाल बना करके, और रिवर ये हम लोग रोप से भी अलाइनमेंट कर दें उसको, और ताकि सेंटर लाइन हमारा बिल्कुल सही हो. सो व्हाट इज मीन बाय अलाइनमेंट हियर, वी हैव टू construct the well in such a way so that its center line of the well will coincide with the center line of the पाया. पाया भी ऊपर हम लोग बनाएंगे, वेल के ऊपर पाया बनाएंगे, उसका सेंटर लाइन या इसका सेंटर लाइन दोनों मैच करना चाहिए. अगर मैच नहीं करता है तो एक्सेंट्रिसिटी प्रॉब्लम आएगी, लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, उस स्थिति में देयर इज अ चांस ऑफ कोलैप्स ऑफ ब्रिजेस. So you can see that is called alignment control. It is written there. See the center line of the wells as well as the abutment or the piers must coincide. And next is, as I told you, that we have to construct the masonry walls. इस किनारे से उस किनारे तक वाल खड़ा करके और रोप से बांध देते हैं, अलाइनमेंट स्टेशन पॉइंट बना देते हैं कि अलाइनमेंट हमारा सही है कि नहीं, अलाइनमेंट हम सही अलाइनमेंट पर वेल का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं कि नहीं. दो well construction takes lots actually long time, it takes long time, but we have to also keep in our mind the proper alignment always should be maintained. So alignment, the next point is the alignment. We shall see the next point, the third point. Once this cutting edge we have installed, then the alignment, the third point is come the well curve. So well curve, this is the cutting edge, you can see cutting edge. और मैं आपको बताया था कि कटिंग एज के ऊपर जब जो वेल कर्व बनाते हैं वो आपका रिइंफोर्समेंट कहीं बनाते हैं और इसके नीचे स्लीपर रखे रहते हैं. अगर मान लीजिए कि रिवर बैंक के किनारे इसको इंस्टॉल बना रहे हैं हम लोग, कटिंग एज और वेल स्टीनिंग, ये सॉरी कर्व बना दिया हम लोग. अब बना करके इसको क्रेन से सीप से उठा करके जहाँ सैंड हमने आइलैंड बनाया है वहाँ ला करके रख दें, और रखने के बाद तब आगे का कार्यक्रम करें. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, see well curve जो भी बनाते हैं, we have to keep in our mind one important thing, the thickness of the well curve will be more than the thickness of the wall staining. कहने का मतलब ये है कि जो इसका जो दीवार का थिकनेस होगा इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी कंपेयर टू स्टेनिंग का थिकनेस के कंपेरिजन में. इससे क्या होगा कि पहले दिस पार्ट विल गो इनसाइड दी बेलो दी रिवर बेड, मिट्टी के रिवर बेड से नीचे जाएगा, और उसके बाद जो है हम कैसे स्टीनिंग करेंगे, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. नाउ वी शैल सी इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेल कर्व व्हाट वी हैव टू डू to distribute the load evenly over the ground. Wooden sleepers are inserted below the cutting edge at regular interval. पहले कटिंग एज हम लोग बनाया और वुडन स्लीपर नीचे रख दिया. उसके बाद द शटरिंग जो मैं आपको बताया कि वेल कर्व जो है आरसीसी का बना होता है, तो आरसीसी को बनाने के लिए आपको शटरिंग करना पड़ेगा. तो शटरिंग हाउ वी कैन डू, द शटरिंग ऑफ द वेल कर्व इज देन इरेक्टेड. द आउटर शटरिंग इज मेड अप ऑफ स्टील. आउटर शटरिंग हम लोग जो बनाते हैं वुड, स्टील या वुड का बनाते हैं, और इनसाइड जो शटरिंग बनाते हैं वो ब्रिक का बनाते हैं, और उसके बीच हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, रिइंफोर्समेंट करते हैं. सो the reinforcement of the curve is then placed in proper position such that the vertical bars project about 2 meter above the top of the curve. कर्व से ऊपर, जैसे यहाँ तो कुछ बना हुआ हम लोग देख रहे हैं,
कर्व कर्व के ऊपर जब कर्व हमारा काम कंप्लीट हो गया तो उसके ऊपर ये देखिए रिइंफोर्समेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए ताकि आगे का स्टेनिंग का काम हम लोग कर सकें. That is written here, at least 2 meter above the top of the curve. Concreting of the curve is done in a continuous operation. हमने जो शटरिंग किया, शटरिंग के बाद हम लोगों ने रिइंफोर्समेंट उसमें डाला और रिइंफोर्समेंट के बाद कंक्रीटिंग कर दिया उसको. सो आफ्टर द कर्व इज क्योर्ड, कर्व का क्यूरिंग भी करते हैं हम लोग एटलीस्ट 7 days एंड द शटरिंग एंड द स्लीपर्स आर रिमूव्ड. अब इसको क्या होता है, अब इसको जब हम लोग शटरिंग हटा लेते हैं, स्लीपर भी हटा लेते हैं और इसको उठा करके अब ले जाते हैं हम लोग सैंड आइलैंड पर. वहाँ जहाँ आपको वेल बनाना है उसको उठा करके वहाँ ले जाते हैं. नाउ वी कैन सी हियर द 15 मिक्स डिजाइन 15. You have been studying in design of a concrete structure. What are the various types of mixed design? M10, M15, M20, it goes up to M80. So M80 mixed design M15 or richer grade or higher grade we can use for the well curve. The well curve is allowed to sink alone before raising the staining above it. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ कि इसको उठा करके जब हम लोग जब रख दिया जहाँ पर आपको बनाना है, ये वेल फाउंडेशन बनाना है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं. लेट इट गो बाई इट्स ओन वेट, इट गोज बिलो द रिवर बेड. रिवर बेड के अंदर जाता है. और दो चीज़ें हमने बताया था शुरू में, हाउ द कंस्ट्रक्शन, हाउ द वेल कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, हाउ वेल सिंकिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू इट्स ओन वेट एंड द ड्रेजिंग इनसाइड द वेल. नीचे खुदाई करना शुरू करते हैं. तो एक एक स्टेप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. So what it says that the well curve is allowed to sink alone before raising the staining above it. इसको जब वहाँ रखते हैं जहाँ अपना अलाइनमेंट किया है कि कितने हमको वेल फाउंडेशन बनानी है रिवर में, तो मान लीजिए कि अगर एक हमने रख दिया तो उसको हम लोग वहीं छोड़ देते हैं कि अपने वजन से जितना अंदर ये सिंक करना चाहता है उसको सिंक करने के लिए छोड़ देते हैं. उसके बाद स्टेनिंग का काम हम लोग शुरू करते हैं. So now we can see here, then we shall go for the construction of well staining. Suppose the curve has gone below the river bed. River bed नीचे चला गया, उसके बाद भी देखिए शटरिंग बना हुआ है, reinforcement डाल दिया गया है. Laborers are putting the concrete inside the staining. This is the walls of the well is called as staining. तो इसमें हम लोग concreting करना शुरू करते हैं. So it is written that the grip length of the well is very small in the beginning during sinking operation and hence chances of tilting are more. Sir, voice is not audible, sir. अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सर. तो हम लोग थर्ड पॉइंट तो डिस्कस कर चुके हैं. आप लोग आवाज सुनाई पड़ा था थर्ड पॉइंट्स? Yes, sir. Third में सुनाई पड़ा था. fourth से सुनाई दिया था सर. ठीक है. So now we shall go for the after the well curve, we shall go for the well staining. Yes, sir. So a well staining, it is the walls of the well. Staining is nothing but it is called as walls of the well. So what is written there? The grip length of the well is very small. शुरू में grip length कम होता है. Grip length का मतलब क्या हुआ कि मिट्टी के नीचे जो well का part होता है, that is called a grip. तो what it said that in the beginning the grip is very small. Grip length is very small and hence chances of tilting are more. जब ग्रिप लेंथ कम होता है और वजन जब जैसे आपका ये वेल का वजन आप कंक्रीटिंग करते जाते हैं, रिइंफोर्समेंट करते जाते हैं, वजन इसका बढ़ते चला जाता है, तो क्या होता है कि थोड़ा टेढ़ा, टिल्टिंग मीन्स टेढ़ा होना, टिल्टिंग लेफ्ट राइट या किसी साइड में टेढ़ा हो सकता है, तो टिल्टिंग की संभावना ज़्यादा होती है.
सो द स्टेनिंग शुड नॉट बी रेज टू हाई इन द इनिशियल स्टेज। इसलिए कहता है, आप देखे होंगे कि हम लोग ईंट का दीवार भी बनाते हैं तो एक ही बार में पूरा दीवार नहीं खड़ा करते, स्टेप वाइज दीवार बनाते हैं ताकि एक कुछ पार्ट सेटल हो जाए, उसके बाद उसका स्ट्रेंथ आ जाए, तब दूसरा हाइट फिर बढ़ाते हैं। लाइकवाइज you can see here the staining should not be raised too high in initial stages of well sinking, which would otherwise lead to increasing the tilting further। जैसे आप वजन बढ़ाते जाएंगे, हाइट बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, टिल्टिंग, टेढ़ा होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ लिए हम लोग शुरू में बहुत कम हाइट बढ़ा दे रहे हैं, फिर वेट करते हैं, 24 आवर्स वेट करते हैं कि कितना सिंक हो रहा है। सो दिस वर्क गोज वेरी स्लोली, वी कैनॉट मूव फास्टली। That's why the very costly foundation, actually well foundation is also very costly. So hence the well curve is first allowed to sink alone, and the sinking is then raised in a small height of 1.5 meter at a time. Suppose the well curve has gone below the river bed, then what we shall do, 1.5 meter at a time, 1.5 मीटर हम लोग हाइट बनाते हैं इसका, and we shall wait for 24 hours for the next height। 24 घंटे वेट करते हैं, जितना इसको नीचे धंसना होता है, सिंक होना होता है, वो सिंक करता है, देन वी शैल वेट फॉर 24 आवर्स। सो अगेन वी शैल सी हियर अबाउट द वेल स्टेनिंग कंस्ट्रक्शन। वंस द वेल हैज एक्वायर्ड ए ग्रिप ऑफ अबाउट 6 मीटर इनटू द ग्राउंड, 6 मीटर तक अगर रिवर बेड से 6 मीटर नीचे चला गया, देन स्टेनिंग कैन बी रेज्ड 3 मीटर एट ए टाइम। 3 मीटर ऊंचा हम लोग आगे इसका हाइट बढ़ाते चले जाएंगे। The sinking machinery should be constructed perfectly vertical to ensure vertical sinking of the well। बिल्कुल इसका अलाइनमेंट पक्का होना चाहिए, जैसे आप प्लम बॉब का यूज करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ताकि वर्टिकल इसका सिंकिंग हो। इस चीज को ध्यान रखा जाता है। The staining must not be built completely at any intermediate stage when the well has tilted to one side। जैसे मान लीजिए कि आपने वेल को बनाया, 6 मीटर तक बना दिया और 6 मीटर नीचे भी चला गया जमीन के नीचे, और थोड़ा टिल्टिंग हो रहा है, तो काम तुरंत वहीं रोक देना चाहिए और रोक करके उसको सीधा करने का प्रयास करना चाहिए। वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि टिल्टिंग को कैसे रोकते हैं और शिफ्टिंग को कैसे। शिफ्टिंग का मतलब होता है कि जो अलाइनमेंट आपने किया है जिस सेंटर लाइन पर, वहां से कभी कभी रिवर वाटर फ्लो मत कहिए, कभी कंस्ट्रक्शन के समय में अलाइनमेंट शिफ्ट भी कर जाता है, डिस्प्लेस कर जाता है, तो शिफ्टिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और टिल्टिंग अगर होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हम लोग लास्ट टॉपिक में आज पढ़ेंगे। सो इससे ये व्हाट इट सेज दैट अगर कहीं भी टिल्टिंग की संभावना है तो उसको हम लोग रोक देते हैं, बीच में ही रोक देते हैं काम को, और टिल्टिंग प्रोसेस जो आज डिस्कस करेंगे उसको प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं इसको स्ट्रेट करने के लिए, सीधा करने के लिए। नाउ वी शैल सी, as I told you that different steps are there, the last stage is the well sinking। तो आपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस समय अंदर हम लोग डिगिंग भी कर रहे हैं, एक्सकेवेशन भी कर रहे हैं। 2 things are there, the self weight of the well and the dredging of the well। That means due to its own weight the well sink inside below the river bed, and second thing, dredging is also carried out। Dredging means excavation। You can see the laborers are excavating the soil। ये क्या करते हैं कि वेल के किनारे किनारे उसके नीचे इसके बॉटम में एक्सकेवेट करते हैं, मिट्टी जैसे जैसे हटाएंगे वैसे वैसे वेल और ऊपर से नीचे की तरफ चलते चला जाएगा। So what is written here, the sinking process is commenced after the curb is cast and the first stage of staining is ready। After curing the material is excavated from inside manually or mechanically। ये मिट्टी को हम लोग मैनुअल हटाते हैं या मैकेनिकल भी हटा सकते हैं। मैनुअल ड्रेजिंग भी करते हैं। व्हाट इज रिटन देयर, मैनुअल ड्रेजिंग इज फिजिबल व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इनसाइड द वेल इज नॉट मोर देन 1 मीटर। तभी हम लोग अगर पानी, चूंकि पानी का यहाँ सीपेज भी होता रहता है इसमें, तो 1 मीटर से अगर ज़्यादा नहीं है तब इसको हम लोग खुदाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो व्हाट वी कैन डू, we can see here an automatic grab operated by diesel winches is used when the depth of water is more। अब ये ऑटोमेटिक मशीन से अभी हम लोग ड्रेजिंग करते हैं, मिट्टी उठा उठा करके और ऊपर इसको हटाते चले जाते हैं और किनारे किनारे खुदाई करते हैं। जैसे जैसे आप मिट्टी हटाते जाएंगे और वेल की हाइट बढ़ाते जाएंगे तो ये अपने आप नीचे चलते चला जाएगा।
Blasting with explosive is also used when weak rock is encountered. That means what? जैसे मान लीजिए कि आप वेल कर्व ये स्टीनिंग जैसे आप इट इज गोइंग इनसाइड द अर्थ, जैसे नीचे जा रहा है और नीचे इसके बॉटम में अगर कहीं रॉक मिल जाता है तो वहाँ पर छोटा ब्लास्ट करके उसको तोड़ देते हैं ताकि वेल नीचे चला जाए। वेल अपने रिक्वायर्ड डेप्थ तक हम लोग डिजाइन करते हैं कि कितने डेप्थ तक जो है वेल को हमको ले जाना है। जैसे हम लोग पढ़े हैं बॉटम प्लग, और सपोज बॉटम प्लग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द हार्ड स्टार्टा वी आर गोइंग टू अचीव बिलो द रिवर बेड, तो वहाँ तक ले जा करके हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय द ब्लास्टिंग विद एक्सप्लोसिव। Now we can see, as I told you, in case of well sinking, two things I have told you. One, we are one is due to the self weight of the steining. The well is going to sink inside below the river bed. And second things, the dredging is also going to carry out. And third things also we are going to do here. Third thing का मतलब क्या होगा? एक नेल्टेज वर्क होता है। नेल्टेज मीन्स वी आर गोइंग टू पुट दिस सब सैंड बैग्स। सैंड बैग्स रख करके उस पर वजन बढ़ाते हैं स्टीनिंग के ऊपर। तो वजन बढ़ाने से होता क्या है कि ये और नीचे की तरफ धंसने लगता है, सिंक होने लगता है। तो एक एडिशनल वेट हम लोग इस पर दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेल्टेज। सो नेल्टेज इन द फॉर्म ऑफ ए सैंड बैग्स, ऊपर सैंड बैग्स हम लोग रख करके छोड़ देते हैं, तो धीरे 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 ये जमीन के नीचे चला जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये कर्व का पार्ट है, कर्व थोड़ा प्रोजेक्शन निकला हुआ है और स्टीलिंग इसके अंदर है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग the diameter of the curve will be more, the width of the curve will be more compared to the width of the steining. So water jetting is also carried out. किनारे किनारे हम लोग पानी का प्रेशर भी देते हैं ताकि ये आसानी से ये आप आराम से ये वेल सिंकिंग हो सके। वाटर जेटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। पंपिंग वाटर फ्रॉम इनसाइड द वेल इज ऑल्सो इफेक्टिव इन द सिंकिंग वेल। अगर पंपिंग भी अगर मान लीजिए सीपेज होकर पानी बॉटम में जमा होता है, उसको पंपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन पंपिंग कब करना चाहिए ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। बट इट इज सजेस्टेड व्हेन द वेल हैज गॉन सफिशिएंटली डीप इनटू ग्राउंड, अदरवाइज ब्लो ऑफ सैंड मे अकर। ब्लो ऑफ सैंड मीन्स व्हाट? जैसे पूरा अगर ये नीचे तक सिंक हो चुका है तब हम पानी से पंपिंग से निकाल सकते हैं इसमें से जो सीपेज हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि गहराई इसकी पूरे डेप्थ तक ये सिंक नहीं हुआ है और आपने पंपिंग किया तो प्रेशर से साइड से ब्लो ऑफ सैंड मीन्स बालू जो है, सैंड जो है इसके अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज ब्लो ऑफ सैंड। सो डिवाटरिंग इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिंकिंग, इंड्यूसिंग सडन टिल्टिंग एंड पोजिंग हजार्ड्स टू दी वर्कमैन। अब जैसे मान लीजिए पंपिंग किया शुरू में, तो होता क्या है कि साइड से नीचे से बालू इसमें इंटर करना शुरू हो जाता है। तो जो आदमी अगर अंदर काम कर रहा है या डाइवर भी काम करता है, गोताखोर भी उसमें काम करते हैं, तो ये क्या होता है उस स्थिति में ये टिल्ट भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी क्रिएट कर सकता है। सो एज आई टोल्ड यू, गनी बैग्स और द ग्रास बंडल्स वी कैन पुट ऑन टू प्रिवेंट द सैंड फ्लो। जैसे सैंड निकल रहा है अचानक, हम पंपिंग कर रहे हैं तो पंप को भी रोक देते हैं, और सैंड को अंदर जाने से रोकने के लिए बैग्स, गनी बैग्स या ग्रास का बंडल्स हम लोग किनारे किनारे बटन पर लगा देते हैं ताकि बालू सैंड जो है बाहर से इस अंदर में नहीं आए, वेल्स में नहीं आए, इसको रोकने के लिए। सो नाउ वी शैल सी वंस अगेन द फिगर हियर। सी, वंस द वेल इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड देन वी शैल गो फॉर द बॉटम प्लग। जब वेल हम लोग बना लिया तो बॉटम प्लग हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं। बॉटम प्लग बनाने के बाद जब इसमें सैंड भर देते हैं, सैंड भरने के ऊपर क्या करते हैं, टॉप प्लग बना देते हैं, और टॉप प्लग के ऊपर क्या करते हैं, पियर खड़ा करते हैं। देखिए पियर यहाँ बना हुआ है। एम आई ऑडिबल? यस यस सर। तो जब हम लोग देखिए टॉप प्लग हम लोग जो बना दिया, टॉप प्लग के ऊपर अब पियर खड़ा करते हैं। अब पियर यहाँ कैसे बन रहा है, वी शैल सी हियर। सो यू कैन सी द वेल फाउंडेशन इन द रिवर। ये आपका वेल फाउंडेशन देखिए रिवर बेड से लगभग थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है। वेल कैप यहाँ पर दिया हुआ है। वेल कैप के ऊपर पियर यह खड़ा करते हैं, उसके बाद ऊपर ब्रिज या रेलवे ब्रिजेज या रोड ब्रिजेज हम लोग बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं वेल्स कैसे हम लोग जमीन के अंदर रिवर बेड के नीचे बनाए हुए हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए well foundation. The bridge has been constructed on the well foundation, and this is called as well cap. So now we shall go to the next topic.
Suppose, as I told you, if there is a tilting, if you are going to sink or if you are going to construct the well foundation, if there is a chance of tilting and shifting, tilting means it is going to become tilt और टेढ़ा हो जाना, inclined हो जाना, झुक जाना उसको, अगर आपका वेल जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया। शिफ्ट का मतलब होता है कि जो अलाइनमेंट लोकेशन है वहां से थोड़ा अलग हो जाना, उसको किसी कारण बस अगर थोड़ा सा भी शिफ्ट कर गया, तो इसको कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द वेल फाउंडेशन। आई वुड लाइक टू टेल यू, sometimes mostly they are asking this question only from the well foundation. What are the measures for the rectification of tilt and shift? So what we have to write, the well should sunk straight and the correct position. However, it is not easy task to achieve this objective. ये बहुत मुश्किल होता है जब वेल फाउंडेशन हम लोग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं टेढ़ा होने की संभावना होती है, थोड़ा लोकेशन अलाइनमेंट से भी शिफ्ट होने की संभावना होती है। The well tilts on one side or it shifts away from the desired position. That means aligned position. The following precaution must be taken to avoid tilts and shift. जनरली हम लोग जब कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो ये पॉइंट्स हम लोग जनरली टिल्ट्स और शिफ्ट को रोकने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन एडॉप्ट करते हैं हम लोग, देखें यहाँ पर। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, द आउटर सरफेस ऑफ द वेल कर्व एंड स्टर्निंग शुड बी रेगुलर एंड स्मूथ। स्मूथ होना चाहिए, कोई हिंड्रेंस नहीं हो, सिंकिंग के समय हिंड्रेंस नहीं हो, इट शुड बी रेगुलर एंड स्मूथ। नेक्स्ट पॉइंट, द डायमीटर ऑफ द कर्व शुड बी केप्ट 4 to 8 centimeter larger than the outer diameter of the steining and the well should be symmetrically placed. होता क्या है कि आपका, as you know, the bottom part of the well foundation is the cutting edge and above cutting edge well curve is there and above well curve the steining is there. तो इसका डायमीटर थोड़ा हम लोग ज़्यादा रखते हैं तो पहले वही नीचे की तरफ प्रवेश करता है, तो उससे व्हाट इज द बेनिफिट वी आर गोइंग टू गेट, आप खुद सोच सकते हैं कि फ्रिक्शन रेसिस्टेंस working along the periphery of the wells is going to be reduced because the diameter of the well curve you have increased. ठीक है, जैसे आप जैसे अब ये वेल कर्व का डायमीटर ज़्यादा, थिकनेस ज़्यादा होगा तो पहले वो पार्ट जमीन के नीचे जाएगा, रिवर बेड के नीचे जाएगा, तो उसको क्या है, उसकी हाइट चूंकि कम है और वेल की हाइट ज़्यादा है और विड्थ ज़्यादा है, तो पहले आपका वेल कर्व नीचे जाएगा तो क्या होगा, वेल के चारों तरफ मिट्टी का संपर्क नहीं हो पाएगा, तो उसका हिंड्रेंस भी नहीं क्रिएट होगा, इसीलिए वेल कर्व का डायमीटर हम लोग ज़्यादा रखते हैं। तो ये चीज प्रिकॉशन हम लोग को ध्यान रखना है। द कटिंग एज शुड बी यूनिफॉर्म थिकनेस एंड शार्पनेस अच्छा होना चाहिए। ड्रेजिंग शुड बी डन यूनिफॉर्मली, सभी देखिए जैसे लेबरर्स जो है नीचे जो है वो जो ड्रेजिंग कर रहे हैं यूनिफॉर्मली ड्रेजिंग करें, नहीं तो एक साइड में ड्रेजिंग ज़्यादा कर दिया, मिट्टी हटा दिया उसका और दूसरे साइड छोड़ दिया तो टेढ़ा हो जाएगा। एंड बोथ द पॉकेट्स ऑफ ए ट्विन वेल, ट्विन वेल अगर आप साथ में लोग ट्विन वेल बना रहे हैं, ट्विन सर्कुलर वेल बना रहे हैं, तो दोनों में यूनिफॉर्मली मिट्टी हटना चाहिए, ड्रेजिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आईएस कोड क्या कहता है कि टिल्ट इज सुटेबल है 1:60, दैट मीन्स 60 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, ये हम लोग का ये परमिसिबल है। उस तरह से शिफ्ट इज ऑल्सो परमिसिबल 1% ऑफ द डेप्थ ऑफ सन, 1% अगर जो है टोटल डेप्थ जो आपने सिंकिंग हुआ है उसका 1% तक जो है कंसीडर किया जा सकता है। सपोज दिस प्रिकॉशन यू आर गोइंग टू फॉलो, but in spite of that the tilting and shifting is going to take place. In that case, how we can control the tilts and shifts? So for these different methods are there, we can see fastly here. Excavation on higher side, जैसे मान लीजिए कि this is the well, right, and this is the plumb bob. Plumb bob दिखाया गया कि सेंटर से हमारा जो है कैसे टेढ़ा हो गया है, इसको दिखाने के लिए ऐसे रखा गया, लेकिन देखिए आप ये वेल जो है टेढ़ा हो गया इस साइड में। So what we can do, we suppose you are going to excavate on the higher side, इधर छोड़ दें एक्सकवेशन करना, अंदर हम लोग जो लेबरर्स काम कर रहे हैं यहाँ एक्सकवेशन ज़्यादा शुरू करें तो क्या होगा, और सीधा स्ट्रेट हो सकता है ये। Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. So Audible. see, when the well is written on one side, excavation should be increased on the other side. इस साइड एक्सकवेशन करना चाहिए, यानी अपोजिट साइड करना चाहिए ताकि ये फिर से सीधा हो सके। दिस टेक्निक इज यूजफुल ओनली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ वेल सिंकिंग। जैसे शुरू में अगर हम लोग जब कुछ ग्रिप लेंथ बहुत कम है और उस समय टेढ़ा हुआ है तो ये हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं इसको स्ट्रेट करने के लिए, टिल्टिंग कंट्रोल करने के लिए। दूसरा हम लोग देखें,
एक्सेंट्रिक लोडिंग। एक्सेंट्रिक लोडिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये वेल टिल्ट हो गया, तो इस साइड में हम लोग ये जो वेट इसका बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखिए रिवर्स में आपका वेट बढ़ा दिया गया है, तो धीरे 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 इट टेक्स ऑन टाइम और ये स्टेट हो जाता है। तो कंट्रोल दी एक्सेंट्रिक लोडिंग। So the well tilts can be rectified by placing eccentric loading on the higher side. Higher side is nothing but the opposite side of the tilt. Tilting इधर हुआ है, इधर हाई साइड है, तो इसको एक्सेंट्रिक इधर हम लोग कर देते हैं, यानी वजन बढ़ाते हैं हम लोग इसको। So the amount of load and eccentricity is decided based on the depth of sinking. Greater is the depth of sinking of well, larger will be the eccentricity. ज़्यादा अगर डेप्थ तक हम लोगों ने सिंकिंग हो चुका है और तब टिल्टिंग होता है, तब उस स्थिति में एक्सेंट्रिसिटी पर यहाँ पर लोड ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा गहराई तक ये सिंक हो चुका है आपका वेल, तो लोड हम लोग को ज़्यादा देना हो। व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड? नेक्स्ट मेथड वाटर जेटिंग। कभी कभी देखिए बाहर से हम लोग पानी का प्रेशर यहाँ देते हैं इसका, क्योंकि ये पार्ट देखिए आप टिल्ट हो गया है, तो इस पार्ट को हम लोग पूरा सीधा सीधा करना है हम लोगों को। तो ये यहाँ वाटर प्रेशर देने से इधर का ये जो है बिल्कुल आपका थोड़ा स्मूथ हो जाता है, तो इसको स्ट्रेट किया जा सकता है, टिल्टिंग इसका कंट्रोल किया जाता है। हायर साइड में हम लोग जेटिंग वाटर प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। That's why it is when water jet is forced towards surface of well, the friction between this wall and the well surface gets reduced. फ्रिक्शन मिट्टी और इसके बीच कम हो जाता है, ये स्टेट हो सकता है। देन एक्सकेवेशन अंडर कटिंग एज। कटिंग एज मीन्स कटिंग एज का मतलब ये होगा कि इस साइड में हम लोग खुदाई करें, मिट्टी का खुदाई कर दें, तो उस स्थिति में भी और पानी को निकाल दें और मिट्टी का खुदाई करें, तो हम इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। If dewatering is not possible, the soil starter is loosened using suitable equipment with help of professional divers. जैसे प्रोफेशनल डाइवर्स, चूँकि सीपेज भी नीचे से होता है पानी का, तो प्रोफेशनल डाइवर्स जो होते हैं उसको अंदर भेज करके हम लोग और इसका एक्सकेवेशन करा सकते हैं। इस साइड में हम लोग एक्सकेवेशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें, वुडन स्लीपर अंडर कटिंग एज। जैसे कभी कभी ये मान लीजिए इधर टिल्ट हो रहा है, हम लोग जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं टिल्ट होना शुरू होता है, तो उसी समय इधर से लकड़ी का जो है हम लोग वुडन स्लीपर एक दे देते हैं, तख्ता दे देते हैं, ताकि आगे की तरफ झुकाव नहीं हो। So this is a temporary phenomena. Temporarily we can put our wooden sleepers or wooden planks to control the tilts, and later on we can remove it. Now the next point we can see here, pulling the well. Pulling the well means what we are going to do. The well can be pulled towards higher side using a steel ropes. Using the steel ropes, we can pull it this sides. And the ropes, see, the ropes are coiled around the well with wooden sleepers. हम लकड़ी भी चारों तरफ से देते हैं कि हमारा इसका दीवार खराब नहीं हो, वेल्स का दीवार खराब नहीं हो, स्मूथ बना रहे, तो चारों तरफ से लकड़ी वुडन प्लैंक्स दे करके और रोप्स बांध देते हैं, बांध करके इसको खिंचाई करते हैं। इधर खींचने के बाद भी स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखा जाता है, नहीं तो खींचने के समय कभी कभी क्या होता है, ये शिफ्ट भी कर सकता है, ये भी इसकी प्रॉब्लम इसमें होने की संभावना है। दूसरा प्रोसेस देखिए, यूजिंग स्टर्ट्स। स्टर्ट्स का मतलब जैसे टेढ़ा हो रहा है, तो वी कैन पुट सम सपोर्ट हियर, यू कैन सी हियर सपोर्ट ही देयर। सपोर्ट के लिए यहाँ पर स्लीपर भी दिया हुआ है, ताकि फिर यूनिफॉर्म लोड लगे और ये दीवार इसका खराब नहीं हो। और ये ड्रिवन पाइल्स हम लोग यहाँ पर एक देते हैं, इसको रोकने के लिए, स्टर्ट को रोकने के लिए। So this is the point. Wooden sleepers are provided between studs and well steening to prevent damage to well steening and distribute the pressure over the large area. So studs are also rested on a firm base having driven piles. Piles हम लोग एक वर्टिकल सपोर्ट देते हैं और जिस पर स्ट्रेट लगा करके इसको तब हम लोग टिल्टिंग रोकते हैं। टेम्पोररी टिल्टिंग टेम्पोररी हम लोग रोक सकते हैं। So next point you can see, suppose you are going to install two twin circular wells. Then what we can do, suppose this well is going straight and this is going to be tilted. In that case, we can use the hydraulic jack and we can make it straight by taking the help from this. But we have to also take care of this point. This well should not shift. जैसे इस पर ये इसको शिफ्ट नहीं हो जाए, अगर इस पर हम वजन ले रहे हैं और इसको स्ट्रेट करने के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ये जो है ये शिफ्ट मत कर जाए अपनी जगह से. That point also you have to take care. So care should be taken while pushing the well, otherwise well may shift.
So this is all about your today topics. And what I'm trying to say here, that the 8 methods are there for the control of tilt and shifts. But am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Yes, sir. So what I'm trying to say here, that 8 methods are there to control the tilt and shift. So any methods we can use at the time of construction of the well. You see that you can use 2 or 3 methods at a time also. So 8 methods means we cannot. It is not required to use only one method only at a time. We can use any methods depending upon the situation. So this is about your today topic.